Hello dear learners, hope you are doing well and studying hard. As we all know, the exam is approaching really fast, that is on the 18th June 2024. We are doing the PYQ series for quite a while now and we have already uploaded the videos from 2014. If you want the PDFs of 2013 and before that, we will try to make them also, but my approach will be to cover at least 10 years paper, that is from 14 to 2013, 2023, and to make sure that nothing must be left behind. We will also try to start the videos on paper 1, that is the general aptitude paper, and make it more and more compressive and precise because it hardly has 50 questions for 100 marks, but they do matter when you are qualifying for GRF, and at least you should target JRF because there is nothing harmful in targeting high, and this score will also help you in the PhD selection, PhD exam, because now UGC has issued that they only will consider the UGC NET marks for the PhD admission, for the JRF and for the UGC NET assistant professorship. So focus as much as you can, study as much as you can in this 1 month. I am saying 1 month because days are passing really fast. You might lose 1 or 2 days or sometimes approximately 10 days in something or the other. So target 1 month, completely devote yourself in the studies and do what best suits you. PYQ, if they suits you, because questions repeat every year, so PYQs are the best help while studying for this exam. Okay, without wasting much of your time now, let's get started. Our paper is paper 3 of history for January 2017. Okay, the paper is of 75 questions for 150 marks. There is no negative marking, जो अभी भी है कोई negative marking नहीं होती है. So moving on to very first question, match list 1 with list 2. Author and definition of history. E.H. Carr, G.R. Hilton, J.B. Bury, R.J. Collingwood. All history is the history of thought. History is the science, no less, no more. History is what the historian writes. History is an endless dialogue between the historian and his facts. Book, just mark this question as important because इसके ऊपर questions आगे भी repeat होंगे. The very first answer is option 3. Our correct answer is option 3 because E.H. Carr has given the statement, history is an endless dialogue between the historian and his facts. Then comes G.R. Hilton. 3. History is what the historian writes. J.B. Bury. 2. History is science, no less, no more. R.J. Collingwood. All history is the history of thought. Moving for the second. Again match the pair. Match list 1 with list 2. Mesolithic site and their locations. Birbanpur, Loteshwar, Paisara, Sarai Nahar Rai. Bihar, Gujarat, Uttar Pradesh, West Bengal. We have already learned about Loteshwar, which is in Gujarat. Okay. हमने एक इसी सीरीज़ में पहला जो वीडियो बनाए थे उसमें हमने पढ़ा था इसके ऊपर. हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4. सो बीरबलपुर इज़ इन वेस्ट बंगाल, लोतेश्वर इज़ इन गुजरात, पैसारा इज़ इन बिहार एंड सराय नहार राय इज़ इन उत्तर प्रदेश. ओके, वी विल जस्ट लुक एट लिटिल पॉइंट्स. बीरबलपुर जो कि फर्स्ट है, इट इज़ अ माइक्रोलिथिक साइट इन वेस्ट बंगाल. Microliths without any pottery are found from this site. फिर लोतेश्वर, it is in Gujarat. It has revealed 2 cultures, Chalcolithic and Mesolithic culture. Many microlithic tools such as stones, sandstone pallets and hammer stones. फिर उसी के साथ साथ pottery वो भी अवेलेबल है वहाँ पर. Redware pottery is available. पैसारा बिहार में है, Mesolithic site. Mesolithic habitation. ओके, हैबिटेशन वहाँ पर आपको कंस्ट्रक्शन मिलेंगे हर्ट्स के और टेम्पररी शेल्टर्स के. सराय नहर राय माइक्रोलिथिक साइट इन यूपी. बोन टूल्स मिले हैं सराय नहर से और उसी के साथ साथ ऑर्नामेंट्स भी मिले हैं. ठीक है. एंड यस, यहाँ से यूज ऑफ फायर ऑन लार्ज स्केल, फायर के एविडेंसेस भी मिले हैं. मूविंग ऑन फॉर द question number 3. The earliest evidence of transition from hunting and food gathering to animal domestication and agriculture in Indian subcontinent has been found from मेहरगढ़. आप ये वाला क्वेश्चन तो कोई नींद में से भी उठ के पूछे तो समझ जाना चाहिए. सबसे अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ हंटिंग एंड फूड गैदरिंग टू डोमेस्टिकेशन एंड एग्रीकल्चर, सबसे पहला एविडेंस मेहरगढ़ से मिला था. पाकिस्तान में ये साइट है, नियोलिथिक साइट. इट इज़ अ नियोलिथिक साइट इन द बोलन वैली, पाकिस्तान. और ये पूरा इंडियन सबकॉन्टिनेंट का बात कर रहा है. सिर्फ इंडिया का बात नहीं कर रहे हैं, इंडियन सबकॉन्टिनेंट. तो इंडियन सबकॉन्टिनेंट का पार्ट पाकिस्तान भी है, बांग्लादेश भी है. ओके, ये हमें क्या बताता है, सेटल एग्रीकल्चर और एनिमल डोमेस्टिकेशन की तरफ लोग शिफ्ट हो रहे थे फ्रॉम हंटिंग एंड गैदरिंग. ओके,
wheat, barley cultivation, then cattles like sheep, goat, domestication, ये सब कुछ स्टार्ट हो गया था. फोर्थ क्वेश्चन. एंड हाँ, इसका ईयर भी लिख दो आप, 7000 से लेकर 5000 BCE. ओके. फोर्थ क्वेश्चन. हरप्पन civilization given below two statements, one labeled as assertion and other is an assertion. Harappan civilization was in close trade relations with South Turkmenistan. Reason, Harappan objects or those produced under Harappan influence have been found at Kisht, Ur, Nippur, etc. अब ये दोनों बात तो एक ही चीज़ के बारे में कर रहे हैं, ठीक है, मतलब बात कर रहे हैं हरप्पन के बारे में. बट हरप्पन एंड हरप्पन रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स कहाँ से मिले हैं, ये साइट्स इन्होंने जो बोली है ये मेसोपोटामिया की साइट्स है. दिस आर द साइट्स ऑफ मेसोपोटामिया. जो एक्चुअली तुर्कमेनिस्तान के साइट्स है वो कौन से हैं, हम वो भी लिख लेंगे एक बार. जैसे है 1 मिनट, अल्तेन, देपे, नमाज़गा, खापूस, ये वाली साइट्स है तुर्कमेनिस्तान की. तो इसीलिए हमारा जो है ये वाला सही ऑप्शन 2 है राइट आंसर. क्यों, तो दोनों बात सही कर रहे हैं बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. द डिस्कवरी ऑफ मेटल वॉज अ रिवोल्यूशनरी इवेंट इन ह्यूमन हिस्ट्री. रिचेस्ट कॉपर माइन्स ऑकर्ड इन विच पार्ट ऑफ इंडिया. रिचेस्ट कॉपर माइन. अब सबसे पहले तो राजस्थान को नोट डाउन करो. थर्ड ऑप्शन हर किसी में ही है, सिर्फ एक में नहीं. राजस्थान में सबसे बड़ी खेतरी माइन्स बोलकर है, अभी भी उसका सिग्निफिकेंस काफ़ी ज़्यादा है. फिर उसके साथ साथ आता है ऑप्शन ए 1, 2 and 3. बिहार, गुजरात और राजस्थान. हमारा करेक्ट आंसर है ये वाला, बिहार, गुजरात और राजस्थान. ठीक है. कॉपर वॉज वन ऑफ द अर्लीस्ट मेटल्स टू बी एक्सट्रैक्टेड इन एंशिएंट टाइम्स. द एविडेंस इज अबंडेंट थ्रू आउट इंडिया इंडिकेटिंग दैट माइनिंग एंड मेटलर्जी वेर क्रिटिकल इन एंशिएंट टाइम्स. राजस्थान में, गुजरात में और बिहार. ठीक है, आगे बढ़ेंगे. फिफ्थ, विच ऋग्वेदिक डेटी इज मोर फ्रिक्वेंटली इन्वोक्ड एज बीइंग द मोस्ट यूजफुल एज ऑल्सो द मोस्ट फियरसम ऑफ द गॉड्स. ये है इंद्र. यहाँ पर ऋग्वेदिक डेटी पूछा है ना, इसीलिए इंद्र का नाम आता है, बिकॉज इंद्र इज द मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन्वोक्ड गॉड इन ऋग्वेदा. फिर उनके हिम्स भी बहुत सारे हैं और काफ़ी विविडली उनको डिस्क्राइब करते हैं. हिज अपीयरेंस, हिज पर्सनैलिटी, जो उनके बारे में लिखे हुए हैं वो उनके पर्सनैलिटी को, दैट इज़ ही इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, अ ग्रेट वॉरियर. उनका वेपन क्या है, थंडरबोल्ट, और वो आर्यस को विक्ट्री की तरफ लीड करते हैं. ऐसा इंद्र के लिए बोला गया है ऋग्वेदा में. ठीक है, आगे बढ़ेंगे. 7th क्वेश्चन. विच टेक्स्ट मेक्स इट एविडेंट एट द वैदिक सभा समिति. 1 मिनट. Which text makes it evident that the Vedic सभा एंड समिति were two separate institutions. ये किससे पता चलता है हमें कि ये दोनों डिफरेंट थे, अथर्ववेदा से. ओके, अथर्ववेदा मेक्स इट एविडेंट. अथर्ववेदा आइडेंटिफाइड सभा एंड समिति एज 2 daughters ऑफ हाई वैदिक गॉड प्रजापति. सभा और समिति को बेटियां बोला गया है प्रजापति की. सभा 1 मिनट. सभा और समिति डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एडमिनिस्ट्रेशन में काम आते हैं. ठीक है. सभा वॉज सिलेक्टिव बॉडी ऑफ एल्डर्स एंड एडवाइज द किंग ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन. हम लिख देंगे सभा क्या था, सभा इज सिलेक्टिव बॉडी. व्हाई दिस इज हैपनिंग टुडे. ऑफ एल्डर्स, जो किंग को एडवाइस करते थे. और समिति क्या होती थी, समिति पॉपुलर असेंबली, जैसे हमारा अभी पार्लियामेंट आता है वो समिति हो जाएगा, और जो सभा है वो राज्यसभा हो जाएगा. ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा में जैसे डिफरेंस आता है. तो समिति मतलब कि हमारी लोकसभा हो गई है और सभा मतलब हमारी राज्यसभा हो जाती है. समिति के अंदर लोकल कॉमन पीपल भी थे. और सभा वॉज रिस्ट्रिक्टेड टू विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, वेरस समिति ग्रेटर से ही सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन. समिति को ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेशन पावर्स थे. 8th, द फॉलोअर्स ऑफ अजीविका सेक्ट वेर ऑल्सो नोन बाय विच ऑफ द अदर नेम्स. अजीविका सेक्ट के फॉलोअर्स को और कौन सा नाम था. ऑप्शन ए है इसका, 1 है हाथापलन खाना और एकादंडिका. ओके, ऑप्शन 1. अजीविका सेक्ट किसने स्टार्ट किया था, महाकाली गोसाला.
उन्होंने स्टार्ट किया था। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लीडर। उनके साथ साथ बुद्धिस्ट ट्रेडिशंस ऑल्सो कनेक्टेड विद अजीविका डॉक्टरिन्स विथ पुराण कश्यप एंड पकुदा कचयाना, ठीक है। और अजीविका की सेंट्रल आइडिया क्या थी? वॉज दैट ऑफ नियति, द प्रिंसिपल दैट अल्टीमेटली डिटरमाइंड एंड कंट्रोल्ड एवरीथिंग। नियति ही सब कुछ डिटरमाइन करती है और सब कुछ कंट्रोल करती है। ये अजीविका सेक्ट की टैगलाइन बोलो या फिर आइडिया बोलो, मोटो, ठीक है। और ये भी वही जैसे जैनिज्म में आता है, बुद्धिज्म में आता है, एस्थेटिक लाइफ जीना, फिर थोड़ा सा ऑफन ईटिंग वेरी लिटिल फूड, सीवियर क्रिटिसिज्म ऑफ अजीविकाज इन बुद्धिस्ट एंड जैन टेक्स्ट इंडिकेट दैट दे आर वर्दी राइवल्स। मतलब कि बुक्स में जो जैनिज्म और बुद्धिज्म के बुक्स है वो उसी टाइम पर, अजीविका सेक्ट भी वो उसी टाइम पर स्टार्ट हुआ था 6th सेंचुरी BC में, जिस टाइम पर बुद्धिज्म और हमारा जैनिज्म स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो इसीलिए वो तीनों अलग अलग सेक्ट्स हैं। 9th, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2, महाजनपद और उनके कैपिटल। आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि हर वीडियो में हम महाजनपद के ऊपर बात करते हैं और उनके या तो किंग के ऊपर या तो कैपिटल्स के ऊपर क्वेश्चन रहता ही है। इसी को प्रेजेंट करता है कि PYQs में महाजनपद का क्या सिग्निफिकेंस था। तो आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मत छोड़ो। सबसे पहले आता है अस्माका, उसकी कैपिटल है हटाका बोला उन्होंने। अवंती अस्माका, अवंती, छेदी, कंबोज, हटाका, माहिष्मती, पोताली, सुक्तिमता। तो हमें मैच करना है। तो हमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 है करेक्ट आंसर। क्यों? तो हम उसे देखेंगे अभी। सबसे पहले तो आएगा अस्माका की कैपिटल है पोताली, फिर अवंती की तो माहिष्मती है, छेदी, सुक्तिमती और कंबोज की है हतका। ओके, अस्माका जो कि 16 महाजनपद में से जो साउथ में है प्रेजेंट हमारे महाराष्ट्र स्टेट के अराउंड, तो वो है अस्माका। अवंती मध्य प्रदेश के पास में आता है। फिर छेदी, उसका सिग्निफिकेंस महाभारत से भी रिलेटेड है। उसकी कैपिटल सुक्ति या सुक्तिमती है। और कंबोज तो कश्मीर में आता है, हिंदुकुश माउंटेन्स ऑफ कश्मीर। ओके, 10th क्वेश्चन, द इंडिका ऑफ मेगास्थीन इज लॉस्ट बट इट सर्वाइव्स इन द फ्रेगमेंट्स इन द राइटिंग्स ऑफ विच ऑफ द ग्रेको रोमन ऑथर्स। एग्जैक्ट क्वेश्चन वॉज रिपीटेड। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, हमने क्वेश्चन ऑलरेडी पहले भी सॉल्व किया है। 2, 3, 4 इसका करेक्ट आंसर है प्लिनी द एल्डर, डियोडरस सेक्युलस और स्ट्रैबो, ठीक है। एक और नाम है जो हमने इसके पहले के वीडियो में भी डिस्कस किया था। हमने टोटल 4 नेम्स देखे थे जो मेगास्थीन की इंडिका को अपने राइटिंग्स में लेकर आए थे। तो उसमें से एक नाम क्या है मुझे वो कमेंट्स में बताओ। आपने अगर पहले का वीडियो नहीं देखा है तो पहले की वीडियो जाकर देखो, क्योंकि वो सारे वीडियोस काफ़ी हेल्पफुल है, ठीक है। इंडिका, प्लिनी द एल्डर वर्ल्ड्स फर्स्ट इंसाइक्लोपीडिया उन्होंने दी थी और ये रोमन ऑथर है। उनकी बुक का नाम क्या था? नेचुरलिस हिस्टोरिया। फिर डियोडरस, ये भी ग्रीक हिस्टोरियन है। बिबिलोथिका हिस्टोरिका इनकी बुक का नाम है। फिर स्ट्रैबो, ये ग्रीक जोग्राफर है, फिलोसोफर और हिस्टोरियन भी। इन्होंने सबसे अच्छी बुक कौन सी थी? जोग्राफी का। ओके, एंड स्ट्रैबो ने इनफैक्ट मेगास्थीन को एक लायर बोला था, बिकॉज मेगास्थीन ने इंडिया के बारे में बहुत अच्छी बातें बोली थी। तो स्ट्रैबो ने ये बोला था कि इट इज़ सच अ बिग लायर टू राइट समथिंग सो गुड अबाउट इंडिया, राइटिंग फैबुलस स्टोरीज अबाउट इंडिया इज़ अ बिग लायर। ऐसा उन्होंने बोला था कि बहुत बड़ा झूठ बोल रहे हो आप। 11th, which of the following is not true about the Roman die pillar inscription of Ashoka? It is located at Lumbini, a place Ashoka has visited personally. It commemorates his visit to pay reverence to Buddha Konakama. Ashoka made the village Lumbini free of bali payments, correct. He reduced its land revenue to 1/8. हमने ये भी क्वेश्चन पहले देखा है। रोमन दाई पिलर इंस्क्रिप्शन, वो यहाँ पर किसे पैट्रोनाइज करने आए थे या किसे ट्रिब्यूट करने आए थे? रिवरेंस बुद्धा को ही करने आए थे, बुद्धा कोनकमा को नहीं। तो हमारा ये है नॉट ट्रू, ठीक है। नेपाल में प्रेजेंट है रोमिंदाई पिलर इंस्क्रिप्शन और उसे माइनर पिलर एडिक्ट बोला जाता है अशोका की। आगे बढ़ेंगे। 12th क्वेश्चन, हु विजिटेड द कोर्ट ऑफ बिंदुसार एज एन एनवॉय ऑफ सीरियन एम्पायर? कौन आए थे? दिमैकस आए थे, विजिटेड द कोर्ट ऑफ बिंदुसार। और ये किसके एम्पायर से बिलोंग करते थे? वॉज अ ग्रीक of the Seleucid Empire, or he had to come as an ambassador to Bindusar. He was sent by Antiochus I, the Syrian king. He apparently wrote extensively on India. He, along with Megasthenes, provide important information about the contemporary society and politics. तो देखो, दमास्कस किसके टाइम पर आए थे? बिंदुसार के टाइम पर आए थे। और उन्हें किसने भेजा था?
हम उनका नाम लिख देंगे। उन्हें भेजा गया था एंटियोकास I, इन्होंने इसे भेजा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2, मिशनरीज डिप्यूटेड बाय द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल और उनके रिस्पेक्टिव एरियाज। क्वेश्चन डिफरेंट है बट इंटरेस्टिंग है। मिशनरीज डिप्यूटेड बाय द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल, मजहंतिका, महारक्षिता, महाधर्मरक्षिता, सोना एंड उत्तरा, कश्मीर एंड गांधार, महाराष्ट्र, स्वर्णभूमि, योना। तो आपको एकदम इजी हिंदू क्या मैं, सबसे पहले तो जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन 2। ठीक है, तो ये जो बुद्धिस्ट काउंसिल उन्होंने मिशनरीज को डिप्यूट किया था, ये कौन से एरियाज़ में किया था, जो आज के एरियाज़ का नाम है और जो पहले था। तो जो मजहंतिका है ये कश्मीर एंड गांधार है, फिर महारक्षिता मतलब ये योना, महाधर्मरक्षिता यानी महाराष्ट्र, और सोना एंड उत्तरा सुवर्णभूमि। ठीक है, सोना, आपको सोना वर्ड का मीनिंग पता है, सोना गोल्ड, और सुवर्ण को भी गोल्ड ही बोला जाता है, तो हमारी हिंट आज की ये है सुवर्णभूमि। ठीक है, अरे सॉरी, आगे बढ़ेंगे हम। और हाँ, वन मोर थिंग, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल किसने पैट्रोनाइज की थी? अशोका। पाटलिपुत्र में उन्होंने थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल की थी और उसी में उन्होंने धर्म को स्प्रेड करने के लिए, धम्मा को स्प्रेड करने के लिए उन्होंने मिशनरीज को अपॉइंट किया था और उन्हें बोला था कि आप जगह जगह पर जाकर धम्मा को प्रोपोगेट करो। ओके, और जो ये योना है ये ग्रीक में है, ये ग्रीक प्लेस है, ग्रीस में है ये प्लेस। फिर सोना और उतारा मतलब ही सुवर्ण भूमि, और म्यांमार को मोन बोलते थे, म्यांमार और मोन, और एक थाईलैंड रीजन में, ऐसे प्लेसेस पर टोटल भेजा गया था 6 प्लेसेस पर। ओके, टू प्रोपोगेट धम्मा। 14, द मौर्यन आर्मी वॉज कंप्राइज्ड ऑफ इन्फेंट्री, कैवलरी, चैरिट्स, एलिफेंट्स। तो इसमें से क्या था? इसमें से सब कुछ था मौर्यन आर्मी में, इन्फेंट्री भी थी, चैरिट्स भी थे, कैवलरी भी थी और एलिफेंट्स भी थे। मेगास्टिन ने बोला है कि उनकी मिलिट्री साइज 6 लाख थी, इन्फेंट्री 3 लाख, कैवलरी 9,000 वॉज एलिफेंट, सॉरी, मिलिट्री 6 थी, इन्फेंट्री भी 3 लाख, 9,000 वेयर द एलिफेंट्स। ओके, फॉर इंटरनल एंड एक्सटर्नल सिक्योरिटी। 15, which of the following Tamil poets were associated with कांची? अपार, पारानार, मबुलनार, सुंदरामूर्ति। कौन कौन एसोसिएटेड है? 1 and 4, अपार एंड सुंदरामूर्ति। ठीक है, 2 poets, तमिल poets who were associated with कांची। अपार कौन थे? शैव पोएट थे, जो नयनार, जिन्हें नयनार बोलते हैं, वो थे। उसके बाद में सुंदरामूर्ति भी नयनार ही थे, शैवा पोएट, शैवा सेंट फ्रॉम तमिलनाडु, और उन्होंने ही वॉज गिवन द नेम नंबी अरुरन, हाउएवर ही केम टू बी नोन एज सुंदरामूर्ति। फिर जो ये पारानार है, हमने ऑप्शन पे देख लेंगे, जो पारानार है ये 1st सेंचुरी CE वाले संगम पीरियड के पोएट है। फिर ममुलनार भी संगम पीरियड के पोएट है, जिन्होंने 31 वर्सेस दिए हैं संगम लिटरेचर को। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। 16, हरिसेना द ऑथर ऑफ प्रयाग प्रशस्ति हेल्ड विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑफिसेस। प्रयाग प्रशस्ति किसकी है? समुद्रगुप्त। ठीक है, और उसमें हरिसेना ने कौन सी पोस्ट थी हरिसेना की, ये पूछा गया है। तो वो कुमारामत्य, महादंडनायक और सांदी विग्रहिका। ऑप्शन 3, 16 का है ऑप्शन 3। ठीक है, हरिसेना वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ समुद्रगुप्त हु मेंशन द अचीवमेंट्स ऑफ समुद्रगुप्त इन द अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन या प्रयाग प्रशस्ति, जैसे और एक नाम है, इन 345 CE। उन्होंने कौन सी ऑफिसेस होल्ड किए थे? कुमारामत्य, प्रोविंशियल काउंसिल, हेड ऑफ प्रोविंशियल काउंसिल, महादंडनायक, चीफ जस्टिस, और सांदी विग्रहिका यानी वॉर एंड पीस। ठीक है, ये क्या होता है? खाद्य पकिका यानी कि चीफ ऑफ द रॉयल किचन, वो नहीं थे, इसे रॉयल किचन बोला जाता है। 17, हु विच अमंग द फॉलोइंग इज द बिगेस्ट जैन इमेज। सबसे बड़ी जैन इमेज कौन सी है? ये है मोनोलिथिक इमेज ऑफ गोमाता एट श्रवण बेलगोला, अभी भी प्रेजेंट है, ये कर्नाटक में सबसे बड़ी जैन इमेज है। गोमतेश्वर स्टैचू, जहाँ पर अभी इनफैक्ट अभी भी काफ़ी सारे डिवोटीज हर साल जाते हैं, उन्हें बाहुबली का भी नाम दिया गया है। और ये किसने बनाया है?
अंडर द पेट्रोनेज ऑफ वेस्टर्न गंगा डायनेस्टी ऑफ तलाकाड, ठीक है, तलाकाड। 18th, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन ऑफ समुद्रगुप्ता डिस्क्राइब हिम एज अ परम भागवता। परम भागवता कौन से इंस्क्रिप्शन में दिया है ये? गया कॉपर प्लेट, ऑप्शन 1 एंड 2, नालंदा कॉपर प्लेट, ये दोनों में उन्हें परम भागवत ये बोला गया है, ठीक है। समुद्रगुप्ता कौन थे? 4th रूलर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी, 336 से 380 CE उनका टाइम पीरियड है, चंद्रगुप्त वन के बेटे हैं वो। और इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन जो प्रयाग प्रशस्ति है उनका मेन सोर्स है अबाउट नोइंग द हिस्ट्री ऑफ समुद्रगुप्त, ओके। 19th, विच न्यू टाइप ऑफ गोल्ड कॉइन्स वे स्टार्टेड बाय कुमार गुप्ता वन। कौन से कॉइन्स उन्होंने स्टार्ट किए थे? अप्रतिगाह टाइप, एलिफेंट राइडर, राइनोसोरस लेयर एंड स्वॉर्ड टाइप, ये चारों भी टाइप के उन्होंने स्टार्ट किए थे, ऑप्शन है 4, ठीक है। कुमार गुप्ता 415 से लेकर 455 तक थे, सन ऑफ द गुप्ता एम्परर चंद्रगुप्त 2, यानी कि समुद्रगुप्त के पोते, ग्रैंड सन ऑफ समुद्रगुप्त 2, समुद्रगुप्त, ओके। और इनके जो गोल्ड कॉइन्स है, हिज गोल्ड कॉइन्स वे कंसिडर्ड सम ऑफ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ इंडियन न्यूमेनिस्टिक आर्ट। ही ऑल्सो इशूड नंबर ऑफ सिल्वर कॉइनेज एंड रेयर कॉइन्स इन कॉपर एंड लीड कॉइन्स भी उन्होंने इशू किए हैं, ये भी पॉइंट नोट डाउन करो। और लार्जेस्ट वैरायटी ऑफ कॉइन्स विच हैड अ होल वैरायटी ऑफ टाइप्स, सबसे ज़्यादा वैरायटी ऑफ टाइप्स किसने इशू किए हैं? कुमार गुप्ता ने ही किए हैं। क्वेश्चन नंबर 20, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2, डायनेस्टी और उनके फाउंडर। उत्तर गुप्ता, मोखारी, पुष्यभूति और वर्मन। फाउंडर है कृष्णगुप्ता, अश्वपति, नरवर्धन एंड पुष्यवर्मन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3, उत्तर गुप्ता डायनेस्टी के फाउंडर है कृष्णगुप्त, मोखारी डायनेस्टी के अश्वपति, पुष्यभूति, नरवर्धन, वर्मन, पुष्यवर्मन, ओके। ये डायनेस्टी जो उत्तर गुप्ता है ये आफ्टर गुप्ता पीरियड, मतलब गुप्ता डायनेस्टी के बाद में स्टार्ट हुई थी, 490 में स्टार्ट हुई डायनेस्टी है। और ये किससे पता चलता है? अपा सीधा इंस्क्रिप्शन। मोखारी, अश्वपति, ईशान वर्मा। मोखारी रूल्ड ओवर द उत्तर प्रदेश एंड कनौज एरिया, कनौज के अराउंड उन्होंने रूल किया था। पुष्यभूति के फाउंडर है नरवर्धन, इन्हें और एक नाम है वरहाना डायनेस्टी, ठीक है। प्रभाकर वर्धन इनके सबसे पावरफुल रूलर है। फिर आते हैं वर्मन डायनेस्टी के फाउंडर पुष्यवर्मन, जो कंटेम्प्रेरी थे समुद्रगुप्त के। Apart from Harsha, the Chinese traveler Yuan Chuang had occasions to meet which other contemporary rulers? और किससे मिले थे वो बाकी किंग ऑफ कश्मीर, किंग ऑफ काची, किंग ऑफ वल्लभी, इन सबसे मिले थे, ऑप्शन 4, ठीक है। हुआन चैंग जो कि एक चाइनीज ट्रैवलर, बुद्धिस्ट ट्रैवलर, मॉन्क, स्कॉलर, जो भी बोल सकते हैं। 602 से 664 उनका टाइम था और वो इंडिया कब आए थे? 645 में, ठीक है। और उन्होंने इंटरेक्शंस भी, उन्होंने एक बुक भी लिखी है जिसमें उन्होंने मतलब जिसका नाम है ग्रेट टैंग रिकॉर्ड्स ऑन द वेस्टर्न रीजन, ठीक है, ग्रेट टैंग रिकॉर्ड्स ऑन द वेस्टर्न रीजन। इंटरेक्शंस लिखे बुद्धिज्म, वो नालंदा में भी विजिट किए हुए हैं, वहाँ पर भी उन्होंने स्टडी की है, उसके बारे में भी उन्होंने डिस्क्राइब किया है अपने बुक में। 22 गिवन बिलो आर द 2 स्टेटमेंट्स, असर्शन एंड रीजनिंग। असर्शन, द पल्वा किंग महेंद्र वर्मन वन, ऑल्सो नोन एज विचित्रचित्ता, वाज अ मैन ऑफ अनस्टेबल माइंड. He professed Jainism for a time but discarded it in favor of Shaivism. Correct answer है 4. Q. महेंद्र वर्मन वन was a पल्लवा किंग 600 से लेकर 630, जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में रूल करते थे, और ही वॉज अ स्कॉलर, ठीक है, पेंटर, आर्किटेक्ट, म्यूजिशियन। फिर उन्होंने ये भी बोला है दैट ही वॉज अ पर्सन ऑफ वेरी क्लियर माइंड, इसीलिए ए फॉल्स है, यहाँ पर उन्होंने अनस्टेबल बोला है, ये रॉन्ग है स्टेटमेंट। उसके बाद में वो पहले जैनिज्म को पैट्रोनाइज करते थे बट लेटर वो शैविज्म में कन्वर्ट हो गए थे आफ्टर द इन्फ्लुएंस ऑफ अपार, जो हमने ऊपर पढ़ा, अपार शैवा सेंट उनके इन्फ्लुएंस में आकर वो शैविज्म में कन्वर्ट हो गए थे। 23. Which among the following temples has a Dravidian type of शिखरा? द्रविडियन टाइप ऑफ शिखरा, अनंत वासुदेव टेम्पल भुवनेश्वर, खंडराय महादेव टेम्पल खजुराव, लक्ष्मण टेम्पल सिरपुर, तेलिका मंदिर ग्वालियर। कौन से इसमें है? तेलिका मंदिर ग्वालियर। द्रविड़ स्टाइल में शिखरा अलग होता है और नागरा स्टाइल में ऐसे कोनिकल होता है शिखरा, ठीक है।
तेलिका मंदिर है, तेलिका टेम्पल इज अ हिंदू टेम्पल लोकेटेड इन ग्वालियर फोर्ट इन मध्य प्रदेश, डेडिकेटेड टू शिवा, विष्णु एंड मैत्रिकाज। ठीक है, 8th सेंचुरी में बनाया गया टेम्पल है ये। और इसमें नागरा स्टाइल नहीं है, ये भले ही नॉर्थ इंडिया में है बट ये नागरा स्टाइल से इन्फ्लुएंस नहीं है, इसका पूरा आर्किटेक्चर ही डिफरेंट है। द टेम्पल इज बेस्ड ऑन प्रतिहारा गोपागिरी स्टाइल नॉर्थ इंडियन आर्किटेक्चर, प्रतिहारा गोपागिरी स्टाइल, जिसमें जो वैगन वॉल टॉप्ड गोपुरम, जैसे गोपुरम होते हैं साउथ इंडियन द्रविड़ा स्टाइल में, वैसा गोपुरम है इस टेम्पल का। ठीक है, बेस्ट मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कौन सी स्टाइल है ये, प्रतिहारा गोपागिरी स्टाइल। ओके, विच डायनेस्टी ऑफ साउथ इंडिया क्लेम दैट इट्स एंसेस्टर्स हैड रूल्ड एट अयोध्या। कौन सी डायनेस्टी है जिन्होंने बोला है? अभी तो अयोध्या से एसोसिएशन हर एक कोई बताएगा अभी, बट ये तो एंशिएंट टाइम की बात है। किसने बोला है ये? 24 का आंसर है ऑप्शन 1, चालुक्यास ऑफ कल्याणी। द चालुक्यास ऑफ कल्याणी वेयर डायनेस्टी जो साउथ इंडिया में रूल करते थे, बट उन्होंने अपना एसोसिएशन अयोध्या के रूलर्स के साथ बताया है। ठीक है, वेस्टर्न चालुक्यास भी इन्हें बोला है, और इनका टाइम पीरियड क्या है? 10th सेंचुरी से लेकर 13th सेंचुरी। ठीक है, और उन्होंने ये क्लेम कहाँ पर किया है? एक इंस्क्रिप्शन है, मीन्स उस इंस्क्रिप्शन नाम है कोथेम इंस्क्रिप्शन, कोथेम इंस्क्रिप्शन ऑफ विक्रमादित्य 6, विच मेक्स द क्लेम दैट द ओरिजिन्स ऑफ देयर डायनेस्टी ट्रेस बैक टू अयोध्या। ये लिख कर रख लो अपने पास में, कोथेम इंस्क्रिप्शन ऑफ विक्रमादित्य 6 ऑफ द चालुक्यास ऑफ कल्याणी। 25, श्री जया इंद्रवर्मन महाराजा धीराज ऑफ भृगु फैमिली वॉज द रूलर ऑफ 25, ही वॉज द रूलर ऑफ चंपा। ठीक है, चंपा वियतनाम में है ये, चंपा एरिया, साउथ वियतनाम। 2nd सेंचुरी CE में उन्होंने रूल किया है महाराजा धीराज। श्री जय इंद्रवर्मन महाराजा धीराज ऑफ भृगु फैमिली, चंपा विच इज इन प्रेजेंट डे सदर्न वियतनाम। किंगडम वॉज नोन एज नगरा चंपा इन द चामिक एंड कंबोडियन इंस्क्रिप्शंस। नगरा चंपा बोलकर उनका किंगडम का नाम था। और जय इंद्रवर्मन ने कब डायनेस्टी को कब रूलर बने थे? वो 959 CE में वो रूलर बने थे, वहाँ के उनके फादर के डेथ के बाद में। ठीक है, 26 गिवन बिलो, वापस से असर्शन एंड रीजनिंग। भंडारकर इक्वेट्स द वीराशैवा विद द लिंगायत सेक्ट एंड ट्रेसेस इट्स ओरिजिन टू अ स्प्लिट इन द आराधया स्कूल ऑफ द शैवास। एक्सेप्टेंस ऑफ ब्राह्मणिकल रिचुअल्स एंड कास्ट एसेडेंसी कॉन्स्टिट्यूट्स द कोर ऑफ द लिंगायत मूवमेंट। ये आर तो गलत है, वो तो आपको समझ ही गया होगा अभी तक कि उन्होंने एक्सेप्टेंस ऑफ ब्राह्मणिकल रिचुअल्स बोला है, इसीलिए आर तो रॉन्ग है। हमारा करेक्ट आंसर क्या है फिर? ऑप्शन 3, बिकॉज उन्होंने ब्राह्मणिकल रिचुअल्स को नहीं एक्सेप्ट किया था, ना ही कास्टिज्म में वो बिलीव करते थे। और एक जो है स्टेटमेंट 1, श्री रामकृष्ण गोपाल भंडारकर, RG भंडारकर जिन्हें बोलते हैं, इंडियन स्कॉलर थे वो, उन्होंने ही वीरशैवा इक्वेट्स वीरशैवा विद द लिंगायत सेक्ट, उन्होंने ही उसे एसोसिएट किया था। फिर जो लिंगायत थे वो कौन थे? लिंगायत सेक्ट फाउंडर गुरु बसवा, ऑल्सो कॉल्ड एज शरनास, 12th सेंचुरी में उन्होंने फाइंड किया था कर्नाटक रीजन में, और उन्होंने हिंदुइज्म से डिपार्चर कर दिया था। वो सिर्फ लॉर्ड शिवा को लिंगा फॉर्म में ही वर्शिप करते हैं। ठीक है, अभी भी प्रेजेंट है कर्नाटक में एंड महाराष्ट्र एरिया में भी काफ़ी सारे लिंगायत प्रेजेंट है एट दिस मोमेंट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फकर मुदब्बिर एंड अदबुल हिरब व शुजात। 2016 के ही जो पेपर 3 अभी जो कल अपलोड किया हुआ वीडियो है, उसमें हमने फकर मुदब्बिर के बारे में बात की है, उनके बुक के बारे में भी। इट इज़ अ वर्क रिटन ऑन द साइंस ऑफ वॉरफेयर इन द अर्ली ईयर्स ऑफ इल्तमिश फैन। Second, Fakar Mudabbir praises highly the swords made in India. Mudabbir mentions that the iron was melted at Khetri in Rajasthan. He offers the earliest known description of technique of producing Damascus steel. तो हमारा 27 का आंसर क्या है? 1, 2 and 4। ठीक है, 1, 2 and 4। मैंने आपको पहले ही बोला था खेतरी से कॉपर मिला था, आयरन नहीं। ये वाला जो है मैंने तभी थोड़ी देर पहले आपको बोला था, खेतरी से कॉपर मिला है। ओके, एंड देन उन्होंने बुक लिखी है अबाउट द वॉरफेयर ऑफ द अर्ली इल्तमिश के टाइम के वॉरफेयर के बारे में उन्होंने बुक लिखी है। ये पर्शियन ऑथर थे फकर मुदब्बिर, और किसके कोर्ट में प्रेजेंट थे ये? गजनवी, फिर घुरी और फिर शांजी सुल्तान्स। ठीक है, उनका फेमस बुक है अदब अल हर्ब व शुजात,
द एटिकेट ऑफ वॉर एंड वेल्लोर, और उनकी दूसरी बुक का नाम है शजारा इंसाफ, द ट्री ऑफ जीनोलॉजीज। हमने उसके बारे में भी लास्ट वीडियो में बात की थी, उनके दोनों बुक्स के बारे में, ठीक है। और ये पर्शियन बुक है, जो अदब है वो पर्शियन बुक है, मिरर ऑफ प्रिंसेस मिरर ऑफ प्रिंसेस, मतलब प्रिंस ने कैसे वॉर्स वगैरह हैंडल करने चाहिए, ये सब कुछ उसमें बताया गया है। और इन्होंने ये बुक किसको डेडिकेट की थी? इल्तुतमिश को ही डेडिकेट की थी। और ये पॉइंट भी नोट कर लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे बढ़ेंगे। 28 given below two statements, assertion and reasoning. Sultan Zainul Abidin was a great patron of learning and surrounded himself with learned men with whom he was fond of holding discussions. Reason: scholars like Sayyid Muhammad Rumi, Qazi Sayyid Ali Shirazi Khan, Qazi Jamal, Sayyid Muhammad Sistani left their countries and immigrated to Kashmir during his reign. तो ये बात सही है, ऑप्शन 1 इसका आंसर है। ज़ैन उल अबिदीन was the 8th Sultan of Kashmir who ruled from 1420 to 1470. He was known by his subjects and indeed बदशाह द ग्रेट किंग, उन्हें बदशाह भी बोला जाता था। क्या टाइटल है उन्हें दिया हुआ, हम उनके टाइटल का नाम लिखेंगे, अभी भी उनको बदशाह ही बोलते हैं, द ग्रेट किंग। ओके, बदशाह बोलकर उन्हें टाइटल है। उन्होंने काफ़ी इंटरेस्ट लिया है इन स्प्रेडिंग एजुकेशन इन कश्मीर। ही ओपन स्कूल्स एंड समटाइम्स हिमसेल्फ अटेंडेड द लेक्चर्स ऑफ द मुला। फिर वो बुक्स का भी काफ़ी उन्हें शौक था और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा स्कॉलर्स को, पोएट्स को पैट्रोनाइज भी किया है। ये जो सारे जो पोएट्स स्कॉलर्स हैं, इनको भी उन्होंने काफ़ी पैट्रोनाइज किया है। उन्हें अपने कंट्री से, उनके रिस्पेक्टिव कंट्री से इंडिया में बुलाया है, अपने कोर्ट में उन्हें प्रेजेंट किया है, उनके साथ में स्कॉलरली डिस्कशंस करते थे वो, ठीक है। 29 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन उलग खान, मतलब ही बलबन रिलेशन विद द अफगान। उलग खान recruited some 300 Afghan into his army. When Ulugh Khan became Sultan, he placed the newly created military outposts near Delhi, such as Patiali, Kampil, Bhojpur, under Afghan control. Sultan Balban appointed Afghan noble Ikhtiyaruddin as wazir. Sultan Balban appointed several Afghans as governor. तो ये बलबन के बारे में कौन सी बातें सही है? करेक्ट आंसर पूछा है, कौन सी बातें सही है? ऑप्शन 1, सिर्फ 1 और 2 ही बातें सही है, ठीक है। अफगान उलुग खान गियासुद्दीन बलबन का नेम है, जो 9th सुल्तान थे मामलुक डायनेस्टी के, इल्तुतमिश के बाद में आते हैं बलबन। और ही वॉज द वजीर ऑफ शमशुद्दीन सुल्तान नसीरुद्दीन, ठीक है। और उनका ओरिजिनल नेम क्या है? उनका ओरिजिनल नेम है बहाउद्दीन उनका ओरिजिनल नेम है। इल्बरी टर्क थे वो। ही टुक हिमसेल्फ एक्सटरमिनेटिंग द ट्राइबल ट्राइब्स ऑफ मेनत एंड अवध, और उन्होंने मिलिट्री आउटपोस्ट भी बनाए हैं एंड गिव लैंड टू सोल्जर्स फॉर एडमिनिस्ट्रेशन एंड अफगान्स टू सेटल। एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेटलमेंट के लिए उन्होंने लैंड्स भी डोनेट किए हैं टू सोल्जर्स। 30 द सुल्तान ऑर्डर वॉट एवर दे कल्टिवेट शुड बी असेस्ड बाय मेजरमेंट इन अकॉर्डेंस विद द इल्ड पर बिस्वा। ऑल ऑफ देम शुड पे हाफ विदाउट एनी डिस्टिंक्शन। इन द अबव स्टेटमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान हैज आस्क्ड द मेजरमेंट ऑफ लैंड एज द बेस ऑफ असेसमेंट। ये क्वेश्चन तो आपको पता होगा अभी, अगर आपने कभी भी थोड़ा सा भी पढ़ा है अबाउट अलाउद्दीन खिलजी एंड हिज लैंड असेसमेंट मेजर्स। ओके, यहाँ पर उन्होंने क्लियरली दिया है। अगर आपको ये स्टेटमेंट पता भी नहीं है तो वो एंड में ऐसा कुछ तो भी वर्ड दे देते हैं जिससे आपको आइडिया आ जाता है कि किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बात कर रहे हैं, जब उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था लैंड रिफॉर्म लाइक अबॉलिशन ऑफ स्मॉल इक्तास एंड लैंड मेजरमेंट पैमाश, उन्होंने अबॉलिश की थी और अपना जब्ती सिस्टम स्टार्ट किया था। जब्ती सिस्टम, उसी से रिलेटेड है ये स्टेटमेंट, ठीक है। 31 which of the following statement about Amir Khusro and his music are correct? Amir Khusro studied the Dakkani music of the Karnataka school. The great exponent of the Deccani or Karnataka music, Naik Gopal, was the contemporary of Amir Khusro. Amir Khusro applauds his invention of sitar in his work Bhurat al-Kamal. Later works credit Amir Khusro inventing about 19 melodic forms, particularly Khayal, Tarana and Kawal. Which are the correct statements? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4, 1, 2 and 4 आर करेक्ट, ठीक है। अमीर खुसरो सूफी म्यूजिशियन थे और स्पिरिचुअली डिसाइपल थे किसके? निज़ामुद्दीन औलिया के। अभी जो शकलबंद सॉन्ग काफ़ी फेमस हो रहा है वो भी अमीर खुसरो ने ही लिखा है निज़ामुद्दीन के लिए, निज़ामुद्दीन औलिया जो उनके गुरु थे उनके लिए, ठीक है। ही इज़ रेफर्ड एज फादर ऑफ कवाली। अमीर खुसरो को फादर ऑफ कवाली भी बोलते हैं। उन्होंने इनफैक्ट गज़ल भी इंट्रोड्यूस की थी,
ठीक है, गजल स्टाइल ऑफ सिंगिंग. ही ऑल्सो इंट्रोड्यूस पर्शियन, अरेबिक एंड टर्किश एलिमेंट्स टू इंडियन क्लासिकल म्यूजिक. और वही ओरिजिनेटर है ख्याल, तराना और कव्वल के भी. ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर है 1, 2 एंड 4. आगे बढ़ेंगे हम. 32 अगेन assertion and reasoning. Assertion: the Indian tradition regarding statecraft was not completely eclipsed with the coming of Turks and continued in many peripheral areas. Reason: the writings of Vijayanagar ruler Krishnadeva Raya, Rajasthani Vigat and Khayat literature and Ramchandra Amatya's Ajnapatra provide useful information on Indian statecraft. तो ये दोनों बातें एक ही चीज़ के बारे में कर रही है, इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर है 1. और क्योंकि टर्किश इन्वेंशन लेड टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम रूल इन इंडिया, तो जो इंडियन स्टेट क्राफ्ट है उनको कंप्लीटली अबॉलिश नहीं हुआ था, बट वो पेरिफेरल एरियाज में, मतलब कॉर्नर्स में चले गया था. तो ये जो एरियाज है जैसे विजयनगर, फिर राजस्थान, ये सारे एरियाज में वो स्प्रेड हो गया था एक्सेप्ट सेंट्रल इंडिया. ठीक है. 33. The naphtha and mangonels were used for the first time in India in which of the following place? naphtha and mangonels ये कहाँ पर यूज़ हुए थे सबसे पहले? सिंध में 1712 में. मैंगोनेल क्या है? कैटापल्ट और सीज इंजन यूज्ड इन मेडिवल पीरियड टू थ्रो प्रोजेक्टिव्स एट अ कैंडल वॉल. एंड नैफ्था फ्लेमेबल लिक्विड हाइड्रोकार्बन मिक्सचर. ओके. और देखो कैटापल्ट मतलब जैसे कि अभी हमारे जो वॉर्स होते हैं, जो मेडिवल टाइम के वॉर्स थे, तो उसमें सपोज आपको अगर किसी के वॉल्स के थ्रू आग लगानी है, तो वो जो जैसे बाहुबली मूवी में बताया है ना कि वो आग लगाते हैं वो पर्दा लगाकर, तो वैसे टाइप के रहते हैं कैटापल्ट. ठीक है. एंड नैफ्था जो फ्लेमेबल, मतलब जो आग लगाने के लिए एजेंट यूज होता है वो नैफ्था. ठीक है. लिक्विड हाइड्रोकार्बन मिक्सचर. 34. फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द प्लेस वे सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ सुल्तान. तो ये है तारा. ये प्लेस से ही उन्होंने अपने आप को रूलर सुल्तान डिक्लेयर किया था, अपने अंकल को मारकर. जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को मारकर उन्होंने अपने आप को रूलर सुल्तान डिक्लेयर किया था 1296 में. 1296. ठीक है. वो पहले तारा के गवर्नर थे और वहीं पर उन्होंने अपने अंकल को बुलाया था और उन्हें मारा था. 35. लिस्ट 1. मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2. टर्म और उनके मीनिंग. बघल, पलाहा, सिलादार, तुमन. द लोएस्ट ग्रेड ऑफ एग्रीकल्चरल पीजेंट होगा. एन आर्म्ड मैन, अ ग्रुप ऑफ 10,000 सोल्जर्स, ग्रेन ट्रेडर्स. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4. ये टर्म्स है, याद कर लो, लिख कर रखो अपने पास में अलग से, रिविजन में बहुत काम आते हैं. बकल यानी कि ग्रेन ट्रेडर्स, पलाहार यानी द लोवेस्ट ग्रेड ऑफ एग्रीकल्चरल पीजेंट, सिलादार एन आर्म्ड मैन और तुमन अ ग्रुप ऑफ 10,000 सोल्जर्स. ठीक है. आगे बढ़ेंगे. हाँ, और एक बात है यहाँ पर, एक बात है, जो ये बखल वर्ड है ना, ये बनिया, जो आज के बनिया है उनके लिए ये वर्ड था. ये भी लिख लो, बनियास को ही बखल बोलते थे. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग सूफी सेंट्स पॉपुलराइज द कादरिया ऑर्डर इन पंजाब एंड सिंध. किसने पॉपुलराइज किया है कादरी ऑर्डर को? ये है शेख मोहम्मद अल हुसैनी एंड शेख अब्दुल कादिर. द कादरिया आर द मेंबर्स ऑफ द सुन्नी कादरी तरीका, सूफी ऑर्डर है ये भी एक. और शेख अब्दुल कादिर इज नोन फॉर बीइंग द फाउंडर ऑफ दिस सूफी ऑर्डर. द कादरी ऑर्डर वॉज पॉपुलराइज इन पंजाब एंड सिंध बाय दिस टू मैन. और शेख वजीउद्दीन अहमद, ये जो है यहाँ पर दिए हुए है, ये शेख वजीउद्दीन अहमद, वो कौन थे? सूफी सेंट थे. और वो कौन से ऑर्डर से बिलोंग करते थे? शतारी ऑर्डर से बिलोंग करते थे, जो गुजरात में प्रेजेंट था. बाकी वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा अगर हम सबके बारे में ऐसे डिस्क्रिप्शन करेंगे. वी विल ट्राई टू मेक द वीडियो शॉर्ट, क्योंकि मुझे ऐसा कमेंट्स आए हैं, ऐसे मैसेजेस आए कि मैम शॉर्ट वीडियोस बनाओ, बट शॉर्ट वीडियोस में सारी बातें कवर ही नहीं होती है, इसीलिए हमें वीडियोस थोड़े लॉन्ग बनाने पड़ते हैं. Assertion and reasoning. Muslim political thinking was also shaped by Adab literature. The Adab literature was to some extent influenced by the Panchatantra, which was introduced in Arabic literature by Ibn al-Mukaffa's translation of Khalil wa Dimna. Correct answer is 1. ठीक है. Correct answer is 1. Adab Islamic concept become a literary genre distinguished by its broad humanitarian concern. Adab literature was to some extent influenced by Panchatantra. दोनों भी बातें सही है. ये ह्यूमैनिटेरियन टच था उसमें, इसीलिए वो काफ़ी पॉपुलराइज हो गया था. 38. मैच, सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑथर एंड सोर्स इज नॉट करेक्टली मैच.
निज़ामुद्दीन अहमद, तबाकत अकबरी, मोहम्मद काजिम, मुतकबा उल लुबाब, अब्दुल हमीद लाहौरी, पातशाहनामा एंड केवल राम, तज़किरत उल उमरा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। जो मोहम्मद काजिम है उन्होंने नहीं लिखा है मुक्ताब, ये लिखा है खाफ खान ने, बाय खाफ खान। ठीक है, बाय खाफ खान। क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द औरंगजेब रूल, ये जो बुक है मुंतकाबे उल लुबाब, इसमें औरंगजेब के रूल के बारे में बताया गया है। और ही बिलोंग टू द फिकेर जफीरा हु वेर एक्सट्रीमली हॉस्टाइल स्कॉलर्स हु वेर फेवर्ड बाय ओके जो औरंगजेब के अगेंस्ट बोला करते थे इन शॉर्ट। 39. Which of the following is not correct? Akbar divided his empire into 12 territorial units. They were called subas. A suba was divided into a number of sarkars. Sarkar in parganas and parganas was further divided into shiks. कल ही हमने ये क्वेश्चन इस पे बात की थी। हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। परगना सबसे छोटा एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट था, उसका कुछ फर्दर डिवीजन नहीं हुआ था। ठीक है, और जो परगना का डिवीजन हुआ था ग्राम में, ग्राम मतलब विलेज। सबसे पहले आता है सूबा जो प्रोविंस होता था, उसका होता था सरकार जो डिस्ट्रिक्ट, परगना ग्रुप ऑफ विलेजेस, और ग्राम आता था उसके बाद में। यहाँ पर आएगा इनटू ग्राम, ग्रुप ऑफ विलेजेस को एक विलेज में डिवाइड करना। ठीक है, Which of the following statements are correct? The leading nobles and scholars such as the great literature Khan-e-Khanan Abd al-Rahim and the leading theologian Sheikh Abd al-Nabi were charged with responsibility of education of Prince Salim. Well versed in Persian and Hindi with a respectable knowledge of Turkey, Prince Salim also possessed a good grounding in history, the natural sciences, geography, martial skills, theology, which were considered appropriate for a prince. Prince Shah Jahan excelled in martial arts. He possessed great military prowess. Prince Shah Jahan, who was born in Ahmedabad, ordered repairs to the both Mughal and pre-Mughal buildings, revealing his interest in the maintenance of older structure. तो इनमें से कौन सी बातें सही है? 40 का आंसर है ऑप्शन 4, 1, 2 and 3। ठीक है, नोट डाउन कर लो। प्रिंस सलीम के टीचर्स का नाम क्या है? खान-ए-खनन अब्दुल रहीम और शेख अब्दुल नबी। ठीक है, उनका इंटरेस्ट किस में था? हिस्ट्री, नेचुरल साइंसेज, ज्योग्राफी, मार्शल स्किल्स, थियोलॉजी, इन सब में उनका इंटरेस्ट था। और प्रिंस सलीम मार्शल आर्ट्स में काफ़ी अच्छे थे, उनके पास में मिलिट्री पावर भी थी। प्रिंस शाहजहां। 41 मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 ऑथर है और उनकी बुक है कैथरीन बी अशर, आर नाथ, एजे कैसर, इबा कोच। मुगल आर्किटेक्चर एंड आउटलाइन ऑफ इट्स हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट, आर्किटेक्चर ऑफ मुगल इंडिया, हिस्ट्री ऑफ मुगल आर्किटेक्चर, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन इन मुगल इंडिया, द एविडेंस फ्रॉम पेंटिंग। तो हमारा सबसे पहले आंसर क्या है? ऑप्शन 2। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2, कैथरीन बी अशर, आर्किटेक्चर इन ऑफ द मेडिवल मुगल इंडिया, आर नाथ, मुगल आर्किटेक्चर, हिस्ट्री ऑफ मुगल आर्किटेक्चर, एजे कैसर, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन इन मुगल इंडिया, और इबा कोच, मुगल आर्किटेक्चर। ठीक है, 42 One of the innovation of Mughals in building technology was a prefab wooden structure. These portable homes were known as bangla in the 17th century, from which the Anglo-Indian word bungalow is derived. Which of the following Mughal emperor is credited with his innovation? बंगला इनोवेशन किसका है? अकबर। ठीक है, ये इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चरल स्टाइल है, मुगल आर्किटेक्चर जो है अंडर द पैट्रोनेज ऑफ मुगल रूलर्स, एंड इट was remarkably symmetrical and decorative of Persian, Turkish and Indian architecture. बंगला को आगे जाकर बंगलो बना दिया। 43 Consider the following statements relating to various ghaz used in Mughal Empire. Abul Fazl mentions that Humayun's ghaz-e-Sikandari consisted of 32 angusht digits. Abul Fazl records that length of ghaz-e-Ilahi was equal to 41 angusht. The length of Dira ghaz-e-Shahjani was equal to little less than 33.5 angusht. तुजुक जहांगीरी mentions the length of ghaz-e-Sharai as 26 angusht. कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन है, आंसर है डायरेक्टली बोल देती हूँ 1। गज और मुगल यार्ड जो रहता है, एक गज ऐसा बोलते हैं ना, यूनिट ऑफ लेंथ होता है गज मतलब ये, और इट वॉज वेरिएबल मेजरमेंट यूज इन मुगल टाइम पीरियड, वेरिएबल था।
assertion and reasoning. The European trade in indigo became very important in the first half of the 17th century, after which it experienced a sharp decline. There was a rise in price of Agra indigo and the competition from the slave work plantation established in West Indies. ये दोनों बातें सही है और एक ही चीज़ को दर्शाती है, इसीलिए 1 है हमारा करेक्ट आंसर. 45. Which of the following statement is not correct? Serfs money changers is specialized in issuing hundis to enable remittances to be made. Hundi was a negotiable document usually transferred at a small discount. A single rate of exchange was fixed for bills drawn at one place upon another irrespective of remittance or credit. The hundi itself specified whether it was to be payable on site or payable at the end of a particular period after its presentation to the drawee. तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3. नॉट करेक्ट पूछा है उन्होंने, नॉट करेक्ट, तो ऑप्शन 3 है. ठीक है, हमने कल ही हुंडी के बारे में जो 2016 जुलाई पेपर 3 है उसमें हुंडी के बारे में बात की है. नेगोशिएबल डॉक्यूमेंट्स होते हैं. सराफ्स वॉज एन अरेबिक टर्म मनी चेंजर के लिए जो टर्म है फॉर मनी चेंजर, ब्रोकर, बैंकर, क्रेडिटर, जो मुगल और पोस्ट मुगल पीरियड में काफ़ी चलते हैं. अभी भी सराफ जो ज्वेलरी से एसोसिएटेड है, सराफ उन्हें बोलते हैं. ठीक है, फिर द टर्म अप्लाइड टू वन हु स्टडीड इन द प्रायोरिटी ऑफ कॉइन्स. जो ये सराफ वर्ड है ये उनको दिया जाता था. ठीक है, और जो हुंडी है, हुंडी वॉज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट डेवलप्ड इन मेडिवल इंडिया फॉर यूज इन ट्रेड एंड क्रेडिट्स ट्रांजैक्शन. नेगोशिएबल डॉक्यूमेंट यूजुअली ट्रांसफर्ड एट अ स्मॉल डिस्काउंट, और उसी के ऊपर लिखा हुआ होता था कि वो कब पे करना है. टाइप्स ऑफ हुंडी वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द 2016. मैं उसे एंड में अटैच कर दूंगी वीडियो को, आप वो वीडियो भी जाकर देख सकते हो. अदरवाइज मैंने प्लेलिस्ट भी पिन करके रखी है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, सारे वीडियोस अवेलेबल है. 46. देयर वॉज अ ट्रेडिशन ऑफ एन एनुअल शरबत विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्ट. देयर वॉज अ ट्रेडिशन ऑफ एन एनुअल शरबत खालसा एट चाक गुरु अमृतसर, बट डिसीजन grew apace and each chief tended to carve out a separate territory for himself. The Dasam Granth contains composition of Guru Gobind Singh, the Guru with Khatris and their principal lieutenants. The Masans were also Khatris. The military power of Gurus reached its apex under the 10th and the last Guru Gobind Singh. गुरु गोविंद सिंह जी के अंदर उनकी पावर सबसे ज़्यादा थी. ये तो बात सही है. हमारा करेक्ट आंसर है 1, 2 and 4. शरबत खालसा बाय एनुअल डेलिब्रेटिव असेंबली होती थी ऑफ द इंशायर खालसा हेल्ड एट अमृतसर. ठीक है, और एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन के जैसा ही होता था जिसमें वो सारी बातें करते थे. मीटिंग्स ऑफ दल खालसा, सिख मिसिस एंड लेजिस्लेचर. फिर दसम ग्रंथ इज द कलेक्शन ऑफ राइटिंग ऑफ गुरु गोविंद सिंह जी, 10th गुरु, और इट वॉज कंपाइल्ड आफ्टर हिज डेथ भाई मान सिंह, भाई मनी सिंह. फिर उसके बाद में गुरु गोविंद सिंह के टाइम पर ही सबसे ज़्यादा भाईचारा भी बढ़ा था. गुरु गोविंद सिंह नोन चीफली फॉर हिज क्रिएशन ऑफ खालसा मिलिट्री ब्रदरहुड, और ही वॉज द सन ऑफ गुरु तेग बहादुर. ये भी बात सही है. तो हमारा करेक्ट आंसर है 147. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट. पर्शियन वॉज नॉट द ओनली लैंग्वेज ऑफ हायर एडमिनिस्ट्रेशन इन द दिल्ली सल्तनत एंड मुगल एम्पायर, बट ऑल्सो स्प्रेड टू द कोर्ट्स इन द ऑफ राजपूत स्टेट्स. सिराजुद्दीन अली परजू propounded the view that Persian and Hindi had fundamental affinities. Teg Chand Bahar quotes poets and prose works in his Bahar-e-Azam, which was written in 1639-40. A new language, Urdu, sprang from the interaction of Persian with Hindi dialects. इसमें से नॉट करेक्ट पूछा है, तो सिर्फ 3 है जो नॉट करेक्ट है, बाकी सब बातें सही है. Bahar-e-Azam is a comprehensive dictionary of Persian prepared by Teg Chand Bahar in 1739. For his work, he spent 20 years to consult over 100 sources and draw many Persian scholars and poets. Poets and prose works in his नहीं, वो डिक्शनरी है जिसमें उन्होंने सारे वर्ड्स के मीनिंग लिखे हैं. ठीक है. 14. वापस से assertion and reasoning. Jean de Thébonot, a French traveler, writes that people of Surat commonly do not drink the water of Tapti river. The water of river was brackish. Correct. Correct answer है 1. Option 1. ठीक है. जीन दे थेवनॉट जो कि फ्रेंच ट्रैवलर थे, नेचुरल साइंटिस्ट, बॉटनिस्ट भी थे, और उन्होंने लिखा है सूरत के बारे में कि यहाँ के लोग तप्ती का पानी नहीं पीते हैं. क्यों? तो वो बारकिश है, मतलब सॉल्टी है, पीने लायक नहीं है. 49. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स पर्टेनिंग टू द कस्टम रेट्स इन मुगल एम्पायर. अबुल फजल मेंशन दैट 2.25% ऑफ द मैक्सिमम कस्टम ड्यूटीज अंडर द अकबर. इन जहांगीर रायन customs duty were 3.5, 2 and 1/4.
और अबुल फजल ने अकबर के टाइम बोला है, इन जहांगीर्स कस्टम ड्यूटी वेयर 3.5% ऑन ऑल इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड. शाहजहां's लैंड कस्टम ड्यूटी वेयर 2% ऑन मनी ईदर गोल्ड और सर्विस. औरंगजेब फिक्स्ड a higher custom rate for non-Muslims. That is why Muslim merchants smuggled goods belonging to Hindus to evade higher custom duties. ठीक है, हमारा करेक्ट आंसर क्या है? इसमें से उन्होंने पूछा कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है रिगार्डिंग कस्टम रेट्स. तो हमारा करेक्ट आंसर है 4. ओके, 2.5 थी, 2.1 अकबर के टाइम पर, 3.5 3.5 जहांगीर के टाइम पर, और औरंगजेब ने तो हाई रेट फिक्स करके रख दिए थे. ठीक है, तो जो शाहजहां का बोला है उन्होंने वो रॉन्ग है. ओके, और शाहजहां ने क्या किया था, उन्होंने डबल कर दी थी कस्टम ड्यूटीज. जहांगीर के टाइम जो 3.5 थी वो 6.5 कर दी थी अप्रोक्सीमेटली. खुद के टाइम पर शाहजहां ने फॉर हिंदूज, और मुस्लिम के लिए तो उन्होंने वो कम्प्लीटली अबॉलिश ही कर दी थी. ठीक है, इसीलिए वो रॉन्ग स्टेटमेंट है. 50 गिवन बिलो असर्शन एंड रीजनिंग अगेन. When Nizam ul Mulk arrived in Deccan as Viceroy in 1714, he refused to accept Gord Khan's agreement for the payment of Chauth and Sar Deshmukhi of the Deccan to Shahu. Nizam ul Mulk inflicted a couple of defeats on them and destroyed the small mud forts which they had built in every district, which served as a base of attack or a place of refuge to the Maratha bands. तो ये किसके बारे में बोल रहे हैं यहाँ पर? और निज़ाम उल मुल्क, उन्होंने सर देशमुखी देने से मना कर दिया था. चौथ और सर देशमुखी जो मराठास कलेक्ट करते थे. तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3. पहला तो सही है. निज़ाम उल मुल्क कौन थे? वॉज अ कमांडर इन चीफ अपॉइंटेड एंड बाय बीजापुर एज कमांडर इन चीफ एंड विसरॉय फर्स्ट इन बीजापुर एंड देन मालवा लेटर इन डेक्कन. विसरॉय थे वो डेक्कन के. ठीक है, और उन्होंने एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल डिपार्टमेंट के हेड भी खुद को बहुत बना दिए थे. और फिर उसके बाद में उन्होंने मिलिट्री और सिविल अथॉरिटीज़ भी अपने तरफ ले ली थी मुगल एम्पायर की. तो जब वो डेक्कन में आए थे 1771 में, 1714 में, ओके, ही रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दौड़ खान्स एग्रीमेंट. उन्होंने मना कर दिया था और इसीलिए उन्होंने इन्फ्लिक्टेड अ कपल ऑफ डिफीट्स ऑन. नहीं, ऐसा कुछ हुआ नहीं था क्योंकि मराठास काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे उस टाइम पर. 51 व्हेन एंड वेयर द सोसाइटी फॉर ट्रांसलेटिंग यूरोपियन साइंसेज वॉज सेटअप. कहाँ पर हुई थी ये? ऑप्शन 3 कलकत्ता में. किसके अंडर? राजा राम मोहन रॉय. मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2. बख्त खान, मौलवी अहमदुल्ला, कुंवर सिंह, हजरत महल, बरेली, जगदीशपुर, लखनऊ, फैजाबाद. ये जो 1857 का जो म्यूटिनी हुआ था, रिवोल्ट, उससे एसोसिएटेड है लोग. और वो कहाँ पर रिवोल्ट उन्होंने स्प्रेड किया था वो इतिहास का नाम बोलना है. तो बख्त खान कहाँ पर थे? हमारे सबसे पहले है बख्त खान. ऑप्शन सॉरी हम पहले ये देख लेंगे. 1 है बरेली से बख्त खान है, फिर मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद से, देन कुंवर सिंह जगदीशपुर, और हजरत महल लखनऊ. ओके, जनरल खान उन्हें बोला जाता है. बख्त खान को जनरल खान का नाम दिया गया है और उन्होंने दिल्ली के तरफ अपनी आर्मी सोल्जर्स को लेकर गए थे वो दिल्ली की तरफ. फिर अहमदुल्ला शाह, मौलवी अहमदुल्ला शाह, जो कि फैजाबाद से बिलोंग करते हैं, एंड इन द अवध रीजन ही वॉज नोन एज लाइट हाउस ऑफ रेबेलियन. लाइट हाउस ऑफ रेबेलियन इन्हें बोला जाता है. ठीक है, कुंवर सिंह जगदीशपुर से, वो एक राजपूत फैमिली से बिलोंग करते हैं, बिलोंग टू रॉयल उदेनिया राजपूत हाउस, और उन्होंने एक बैंड ऑफ सोल्जर्स को ब्रिटिश के अगेंस्ट खड़ा किया था. हजरत महल लखनऊ से आती है, जो बेगम ऑफ अवध भी है. हजरत महल बेगम ऑफ अवध बोला जाता है उन्हें, और वो फर्स्ट वाइफ है नवाब वाजिद अली शाह के. ठीक है, 53 assertion and reasoning. The decline of traditional handicraft cottage industry was the result of British commercial policy. The imperialist conquest has given immense resources to the British. अभी ये क्या है? जो क्राफ्ट्समैन जो सब उन्होंने हड़प लिया था, उनका ट्रेड वगैरह, उसके बारे में है. ये दोनों बातें सही है बट रिलेटेड नहीं है एक दूसरे से. ओके, commercial policy of East India Company of 1830 after 1830 was guided by the needs of British industry. Indian products had compete with British products with heavy import duties on entry into Britain. जो इंडियन प्रोडक्ट्स थे उनको हैवी इम्पोर्ट ड्यूटी पे करनी पड़ती थी टू एंटर इन ब्रिटेन. ठीक है, और इसी की वजह से डिक्लाइन हो गया था ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट कॉटेज इंडस्ट्रीज का.
54. Assertion and reasoning. The liberals genuinely believed that there was a constitutional way to India's self-rule. Reason, they had an abiding faith in the British sense of justice. करेक्ट है ये दोनों बातें. लिबरल्स ने काफ़ी भरोसा किया था ब्रिटिशर्स के ऊपर. इनफैक्ट वो उनको काफ़ी फॉलो भी करते थे, बट बाद में उन्हें भी धोखा ही मिला. 55. Given below are two statements, assertion and reasoning again. According to Vivekanand, caste system is opposed to the religion of the Vedanta. Reason, all evil comes from relying upon differences. All good comes from faith in equality, in the understanding of underlying sameness and oneness of the things. तो ये उन्होंने बोला है, अपने वेदांता स्कूल ऑफ थॉट था उनका, उसके लिए. और ये दोनों बातें सही है. ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट रीजन फॉर ए. स्वामी विवेकानंद का ओरिजिनल क्या है, नेम क्या है? नरेंद्रनाथ दत्ता, जो एक हिंदू मॉन्क है और रामकृष्ण मिशन उन्होंने स्टार्ट किया था 19th सेंचुरी में, और फॉर इंडियन फिलोसॉफी ऑफ वेदांता को उन्होंने प्रोपोगेट किया था. ठीक है. 56. Who among the following had not been involved in floating the idea of permanent settlement for Bengal? कौन नहीं था इसमें? यह है मॉन्टेगोमेरी मार्टिन. कौन थे ये? एंग्लो इरिश ऑथर है, सिविल सर्वेंट है, और इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन भी फाउंड की है. ही वॉज फाउंडर मेंबर ऑफ स्टैटिस्टिकल सोसाइटी ऑफ लंडन एंड कॉलोनियल सोसाइटी, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन. परमानेंट सेटलमेंट किसने स्टार्ट किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में. एग्रीमेंट बिटवीन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड लैंडलॉर्ड्स ऑफ बंगाल. ठीक है, टू सेटल द लैंड रेवेन्यू. फिर वो सेटलमेंट को वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय इंग्लिश ट्रेडिशंस, जो फिलिप फ्रांसिस और हेनरी पटोला, और जो अदर ओपिनियन एंड ऑल्सो द ओपिनियंस ऑफ अलेक्जेंडर डॉ एंड थॉमस लॉ. ये सबके ओपिनियन से बनाया हुआ है ये जो बाकी के 3 हैं इनका ओपिनियन है, और जो हमारे कॉर्नवालिस है उन्होंने इंडिया में इंट्रोड्यूस किया है. अरेंज क्रोनोलॉजिकली. रंपा, संतल, कोल, मुंडा अंडर बिरसा. तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2. सबसे पहले आता है कोल, और मुंडा तो सबसे लास्ट में आएगा. 1899 में हुआ था. ठीक है. कोल कब आता है? सबसे पहले आता है कोल, फिर संतल, फिर आता है रंपा, और फिर बिरसा मुंडा का संत रेबिलियन. लेट्स राइट द ईयर्स. कोल एट छोटा नागपुर. 1 मिनट. नोट डाउन द ईयर्स. वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा था, इसीलिए मैंने पहले पॉज कर मैंने ईयर्स लिखे हैं. आप लिख लीजिए सारे ईयर्स वगैरह अच्छे से. ठीक है. 58. Who among the following were revolutionary leaders? कौन से है रिवोल्यूशनरी? बरकतुल्ला, खिजर हयात खान, ओबेदुल्ला सिंधी, महमूद हसन. आंसर है ACD. ठीक है. बरकतुल्ला ऑल्सो नोन एज मौलाना बरकतुल्ला, इंडियन रिवोल्यूशनरी पैन इस्लामिक मूवमेंट से एसोसिएटेड है. ओबेदुल्ला सिंधी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट फॉर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फ्री. ही क्राइम फॉर एन एक्सप्लॉयटेशन फ्री सोसाइटी. महमूद हसन पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी से एसोसिएटेड है. 1942-47 के अराउंड एक्टिव थे. 59. In which session of Indian National Congress a policy about princely states was first time enunciated? कौन से टाइम पर आई थी ये? नागपुर सेशन 1920. टूवर्ड्स द पीपल्स मूवमेंट इन द प्रिंसली स्टेट्स. जो पीपल्स मूवमेंट प्रिंसली स्टेट्स में हो रहे थे उसके लिए उन्होंने पॉलिसी बनाई थी. इट कॉल्ड अपॉन द प्रिंसेस टू ग्रांट फुल रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन देयर स्टेट्स. ठीक है. 60. इन विच सेशन कांग्रेस पास द रेजोल्यूशन ऑफ पूर्ण स्वराज. 1929 के लाहौर सेशन में, जिसके प्रेसिडेंट कौन थे? जवाहरलाल नेहरू. डिसीजन वॉज टू लॉन्च द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट टू अचीव द कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज, एंड टू ऑब्जर्व 26 जनवरी एज इंडिपेंडेंस डे. उसी टाइम पर नेहरू जी फर्स्ट प्रेसिडेंट भी बने थे. ओके. 61. विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1942 बाय लेफ्टिस्ट वुमेन लीडर्स इन बंगाल. कौन सी थी ये? महिला आत्मरक्षण समिति. 1942 में उन्होंने बनाई थी. सेल्फ डिफेंस लीग बोला जाता है इसे. वॉज द फर्स्ट मास बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वुमेन. इट फॉर्म्ड अ डिस्टिंक्टिव कल्चरल क्लाइमेट जनरेटेड बाय एंटी फेसिस्ट मूवमेंट. और ये कम्युनिस्ट पार्टी से लिंक थे. ठीक है. और इसके फाउंडर्स कौन है? रानी मित्र दास गुप्ता, मणिकुंतला सेन और रेणु चक्रवर्ती. की लीडर्स ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन. रानी मित्र दास गुप्ता, मणिकुंतल सेन एंड रेणु चक्रवर्ती. 62. Who among the following was the first Indian woman president of INC, Indian National Congress? यह है सरोजनी नायडू, जो कब बने थे? इंडियन लाहौर जो लखनऊ सेशन में ये प्रेसिडेंट बने थे 1916. उसके पहले इन्होंने इंडियन पूछा है, इसीलिए मैंने इंडियन बोला है. यहाँ पर इंडियन है वेरी प्रिसाइसली. फर्स्ट वुमेन कौन है ये मुझे कमेंट्स में बताएं. 63.
लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। बम बोधिनी महिला भारती सुप्रभात स्टार्टेड बाय द्विजेंद्रनाथ टैगोर, एडिटेड बाय उमेश चंद्र दत्ता, एडिटेड बाय गिरीश चंद्र सेन, स्टार्टेड बाय कुमुदिनी एज बसंती मित्रा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। तो सबसे पहले बम बोधिनी एडिटेड बाय उमेश चंद्र दत्त, महिला गिरीश चंद्र सेन की एडिटेड है, फिर भारती द्विजेंद्रनाथ टैगोर और सुप्रभात है कुमुदिनी एंड बसंती मित्रा। ठीक है, बम बोधिनी पत्रिका 1863 में स्टार्ट की थी उमेश चंद्र दत्तन ने। महिला पत्रिका गिरीश चंद्र सेन उन्होंने स्टार्ट की थी, और नोन फॉर द फर्स्ट क्रेडिबल एंड फुल ट्रांसलेशन ऑफ होली कुरान इनटू बंगला गिरीश चंद्र सेन, उन्होंने कुरान को बंगाली में ट्रांसलेट किया हुआ है। फिर भारती मैगजीन द्विजेंद्रनाथ टैगोर जो कि एक इंडियन पोएट है। फिर सुप्रभात है बंगाली मंथली जो कुमारी कुमुदिनी मित्रा और बसंती मित्रा ने स्टार्ट की है, बहनें हैं दोनों, उन्होंने स्टार्ट की है। 64 खुदाई खिदमतगार वेर पॉपुलरली नोन एज, उन्हें क्या बोलते थे? रेड शर्ट्स। ऑप्शन 2 पश्तून, फ्रंटियर गांधी से एसोसिएटेड है ना ये पश्तून्स और पठान्स और अफगान्स ऑफ द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया। उनके मूवमेंट को किसने लीड किया था? खान अब्दुल गफर खान। 65 आर्य समाजी लीडर मिस्टर हरिविलास शारदा बिलोंग टू विच पार्ट ऑफ इंडिया? कौन से पार्ट से आते थे ये? राजस्थान। ऑप्शन 1 हरिविलास शारदा वॉज एन इंडियन एकेडमिक जज एंड पॉलिटिशियन। उन्होंने चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट इंट्रोड्यूस किया हुआ है 1929, और ये एक माहेश्वरी फैमिली से बिलोंग करते हैं। एक्चुअली इट इज़ शारदा है उनका सरनेम, शारदा। ओके। 66 विच एरियाज कम्युनिस्ट लॉन्च अ 1 minute 66 विच एरियाज कम्युनिस्ट लॉन्च अ मैसिव कैंपेन विद द स्लोगन थ्रो द अमेरिकन मॉडल इनटू द अरेबियन सी? किसने स्टार्ट किया ये? एरिया ऑफ नॉर्थ वेस्ट त्रावणकोर स्टेट, उन्होंने स्टार्ट किया है थ्रो द अमेरिकन मॉडल इनटू अरेबियन सी। कब स्टार्ट हुआ था ये? त्रावणकोर क्या है एक्चुअली? ये एक इंडियन किंगडम था जो 1729 से 1949 तक रूल किए उन्होंने, और रॉयल फैमिली थी त्रावणकोर रॉयल फैमिली। तो जो ये एक्शन लिया था उन्होंने, ये अगस्त रेजोल्यूशन के अगेंस्ट लिया हुआ एक्शन है। अ सेक्शन ऑफ बैंगिर्स नेशनल मूवमेंट हैज ऑल्सो स्टार्टेड ट्राइंग विद द सजेशन टू गिव द रिफॉर्म्स अ फेयर ट्रायल। इट वॉज इन द कंटेक्स्ट दैट CPI केम फॉरवर्ड विद दिस स्लोगन। जो उन्होंने लोगों को पकड़ा, मतलब जेल की थी, उन्हें फेयर ट्रायल मिलना चाहिए, ऐसा लोगों का बोलना था, जो अमेरिकन मॉडल था। इसीलिए जो CPI जो कम्युनिस्ट पार्टी के लोग थे उन्होंने बोला था थ्रो द अमेरिकन मॉडल इनटू अरेबियन सी। 67 द मोस्ट मिलिटेंट स्ट्रगल वॉज द तेभागा स्ट्रगल बाय द शेयर क्रॉपर्स ऑफ बंगाल। दे डिक्लेयर्ड दैट दे वुड नॉट पे डैश ऑफ द क्रॉप टू द लैंडलॉर्ड्स। 1/2 जो है हाफ would not pay half to the landlords. 68 in which year the National Congress passed a resolution calling upon the Indian people to refrain from use of Japanese good? 1937. Option 2. 69 arrange the following events in chronological order. Subhash Chandra Bose had a meeting with Mr. Tojo. Subhash Chandra Bose arrived at Tepi. INA hosts the national flag on free Indian soil. Establishment of Indian National Army. तो हमें इन्हें क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना है। हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ऑप्शन 1। लेट्स अरेंज, नोट डाउन द डेट्स। तो सबसे पहले आता है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी 1942 में साउथ ईस्ट एशिया में हुई थी ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 2। फिर सुभाष चंद्र बोस हैड मीटिंग विद मिस्टर तोजो 1943, जापान में उन्होंने मीटिंग की थी। ये प्राइम मिनिस्टर है तैजो वन, जो जापान के प्राइम मिनिस्टर थे, उनके साथ में। आया होस्ट द नेशनल फ्लैग 1944 14 अप्रैल 1944 फॉर द फर्स्ट टाइम, जब उन्होंने, और ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 2 जब मणिपुर में उनका हेडक्वार्टर था उस टाइम पर। कॉलोनल शरकत मलिक ऑफ आयन होस्टेड आयन ट्राई कलर फॉर द फर्स्ट टाइम। कौन थे? शरकत मलिक। सुभाष चंद्र बोस बिलीव टू हैव डाइड इन एन एयर क्रैश ऑन 18 अगस्त 1945 एट तेपी। 1945 में उनकी डेथ हुई थी। ताइवान का नाम था तेपी। 70 हु सेड द फॉलोइंग इन्वोक द एड ऑफ द ऑलमाइटी टू मेक मी अवे फ्रॉम दिस वेल ऑफ टीयर्स rather than make me a helpless witness of the butchery by men become savage whether he dares to call himself a Muslim or Hindu or what not। ये किसने बोला है? M.K. गांधी। M.K. गांधी जी ने बोला है ये वाला स्टेटमेंट। उन्होंने कब बोला था? उनके बर्थडे के दिन। इज सेड बाय महात्मा गांधी ऑन 2 अक्टूबर 1947 व्हेन कंट्री सेलिब्रेटेड गांधीजीज फर्स्ट बर्थडे आफ्टर ही गेन्ड इंडिपेंडेंस। ठीक है, और ये क्यों बोला था उन्होंने? ताकि हिंदू और मुस्लिम की यूनिटी हो सके, इसीलिए ये स्टेटमेंट दिया था। ऑन 2 अक्टूबर 1947
आगे बढ़ेंगे 71. Who among the following describe the redistribution of provinces on linguistic basis as assassins of nationalism? सरदार वल्लभ भाई पटेल. जो डिमांड्स आ रही थी ना टू रीडिस्ट्रीब्यूट द प्रोविंसेस ऑन लिंग्विस्टिक, लैंग्वेज के बेसिस पर डिवाइड करो स्टेट्स को, तो उसके लिए उन्होंने क्या बोला था, बेसिस ऑफ असैसिन्स ऑफ नेशनलिज्म. ठीक है, असैसिन्स ऑफ नेशनलिज्म का मतलब है कि जो नेशनलिज्म है उनका मर्डर करना, हत्या करना एक तरह से. तो उसी के लिए उन्होंने बोला था कि ऐसा डिवीजन करना सही नहीं होगा. 72. Which of the following was not an aspect of official policy of apartheid? कौन सा नहीं है उसका पार्ट? ऑप्शन 4. पैट्रोनाइजिंग नेटिव कल्चर ऑफ अफ्रीकन्स, रेशियल सेग्रीगेशन, सेपरेट बट इक्वल डेवलपमेंट ऑफ अफ्रीकन्स, लॉ प्रोहिबिटिंग मिक्स्ड मैरिजेस. ये उसके एस्पेक्ट थे ऑफिशियल पॉलिसी के. नेटिव कल्चर को पैट्रोनाइज करना नहीं था. 73. फिर से है बुक्स एंड ऑथर जे हॉब्सन, लेनिन, के.एन. खुरमा एंड R.S. टैवने. Neo-colonialism, the last stage of imperialism, imperialism study, imperialism as the highest capital state of capitalism, religion and the rise of capitalism. Correct answer is option 3. Correct answer is option 3. Okay. तो सबसे पहले जे हॉब्सन ने बोला है imperialism a study, then लेनिन imperialism as the highest state of capitalism, then के.एन. खुरमा ने बोला है neo-colonialism, the last stage of imperialism, R.S. टैवने, religion and the rise of capitalism. 74. Who among the following expressed grave doubts about Ranke's tall claim regarding objective and impartial history? किसने बोला है ये? E.H. खार. E.H. खार कौन थे ये? हिस्टोरियन, ब्रिटिश हिस्टोरियन थे ये. उन्होंने ऑब्जेक्टिव उठाया है रैंकेस टॉइनबी, सॉरी अर्नोल्ड रैंके के ऊपर. 75. In which year the non-proliferation treaty was signed? ऑप्शन 2. 1963. Treaty of non-proliferation ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, कॉमनली नोन एज नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जिसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रेजेंट स्प्रेड ऑफ न्यूक्लियर वेपर्स एंड टेक्नोलॉजी, प्रमोट कोऑपरेशन एंड पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, टू फर्दर द गोल ऑफ अचीविंग न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट एंड जनरल एंड कंप्लीट डिसआर्ममेंट. ठीक है, today's session was quite tough because of a little bit of health problem, but I hope you understand everything which I have tried to express. So do like and share with your friends. Thank you for watching. Hope you are studying well. If you have any doubts, comments में बताओ, या फिर do message me on Telegram. Do join the group. Try to join the subscribe the channel and join the group. ग्रुप में आप मुझसे क्लियरली बात भी कर सकते हो, और कुछ डाउट्स है तो मैं वहीं पर क्लियर भी कर दूँगी. इसी के साथ में आज का वीडियो यही खत्म होता है. थैंक यू.